Good morning to all of you. Before going to challenging topics, today's in-house training topic, addressing challenges in post-COVID schooling. I want to introduce myself. I am Birendra Sharma, working as a teacher in Permanent Public School, Surwal, Siwan, Bihar. And I have got an opportunity to attend the in-house training in our school campus. And I am again thanking to the CBSE board and our school management, those who have provided me this opportunity. The today's topic, as I told before, introduction. We all know about the COVID, and today we will know about the challenges. Introduction. Most of the government around the world have temporarily closed schools in an attempt to contain the speed the COVID-19 pandemic. Many have launched distance learner program and beginning to plan for recovering, a phase that involves much more than reopening the gates and readmitting students. During the response, there may be opportunities for government to improve practices and build back better. But the decisions are being made under extreme uncertainty. In this context, education policy making is particularly difficult but will be strongest when it is informed by existing rigorous evidence. Secondly, approached with a long-term perspective that prioritize flexibility, communication, and trust. And thirdly, able to adapt based on new data and information gained from community engagement and monitoring. The short and accessible brief collection here draw on rigorous evidence relevant to the COVID-19 emergency for formulate recommendation and policy makers to 5 critical dimensions of the school reopening and recovery. Engaging communication in reopening plans. Secondly, targeting resources to where they are most needed. Getting children back to school, making school environment safe, recovering learning losses and building back better. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों तक स्कूल जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है और स्कूल खुलने के बाद बहुत सारी चैलेंजेस स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को फेस करने पड़े हैं और अभी भी फेस कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे बड़ी चैलेंज थे एंगेजिंग कम्युनिटीज़ इन रीओपनिंग प्लान्स, जैसे कि स्कूलों को किस तरह से प्लानिंग करके रीओपन किया जाए। नेक्स्ट, टारगेटिंग रिसोर्सेज टू वेयर दे आर मोस्ट नीडेड, और जो भी इसके रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहां मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है गेटिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। हम सभी जानते हैं कि स्कूल जब भी रीओपनिंग हुए हैं बच्चे और पेरेंट दोनों स्कूल आने से कतराते थे।
मेकिंग स्कूल एनवायरनमेंट सेफ, और भी एक बड़ी चैलेंज थी कि स्कूल के एनवायरनमेंट जो है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। रिकवरिंग लर्निंग लॉस एंड बिल्डिंग बैक बेटर, अभी तक बच्चों में जो कमियां आई हैं उसको किस तरह से मेकअप किया जाए और किस तरह से उनकी फिर जो कमी है उसको दूर किया जाए, ये भी सबसे बड़ी चैलेंज है। तो गेटिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं या आएंगे वो कैसे आएंगे, उनके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड हाउसहोल्ड्स आर facing few pressure on their time and resources that will make re-enrollment challenging for some families as school reopen। स्कूल जब दोबारा रीओपन हुई तो बहुत सारे चैलेंजेस भी सभी को फेस करने पड़े, जिसमें सबसे बड़ी चैलेंज थी पेरेंट के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के रूल्स के अनुसार ईच ईयर बच्चों को री एनरोलमेंट करना पड़ता है, यानी कि दोबारा उन्हें री एडमिशन करनी पड़ती है। तो बहुत सारे फैमिली के लिए ये भी बड़ी चैलेंज थी। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल कैंपेन टू एनकरेज एनरोलमेंट एंड कंसीडर एडिशनल मेजर टू सपोर्ट द ट्रांजिशन बैक टू द स्कूल। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाई, स्कूल्स को भी रिलैक्स करने के लिए, उनकी फ़ी को लिमिट करने के लिए भी पॉलिसी बनी, ताकि इसमें पेरेंट और स्टूडेंट सभी को बेहतर हो सके। पॉलिसी मेकर्स विल वांट टू एक्सेस एविडेंस टू सपोर्ट देयर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग and to draw on relevant experience from elsewhere। पॉलिसी मेकर्स यानी कि जो भी कोरोना के कोविड-19 के प्रोटोकॉल के फेवर में पॉलिसीज़ बनाए, उन्हें भी बहुत तरह की एविडेंस की ज़रूरत पड़ी, बहुत तरह के प्रूफ की ज़रूरत पड़ी कि किस तरह के रूल्स, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो और स्टूडेंट्स, पेरेंट एंड स्कूल के फेवर में हो। एविडेंस रिलेटेड टू गेटिंग चिल्ड्रन बैक टू द स्कूल एंड आइडेंटिफाई टू रिकमेंडेड एक्शन फॉर पॉलिसी मेकर बेस्ड ऑन द बॉडी ऑफ एविडेंस। तो जो भी उन्हें एविडेंस की ज़रूरत पड़ी उस एविडेंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, समरी उसकी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है तो एविडेंस के बाद जो पॉलिसी बनी उस पॉलिसी में क्या होनी चाहिए थी। एनकरेजिंग री एनरोलमेंट, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं दोबारा उन्हें स्कूलों में आने के लिए और री एनरोलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम किया। आप देखे होंगे या सुने होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी टीचर सभी आते थे और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पेरेंट्स से विजिट करते थे और बच्चों की एडमिशन एंड री एनरोलमेंट की काम हो रही थी, ताकि पेरेंट जो हैं बच्चों को डाइवर्ट ना करें, किसी दूसरे वर्क में उन्हें एंगेज ना करें। Very little rigorous evidence exists on students' enrollment and school recovery after a crisis. This is an area where current monitoring could greatly contribute to future knowledge. Available evidence suggests that government can identify the priorities students who are the most likely to drop out by using existing data on the risk factor। तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनाने के पहले उन्होंने एक चीज़ को फील किया
कि बच्चे जो स्कूलिंग में जो थे उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाए कि वो बच्चे फिर से दोबारा स्कूल ज्वाइन करें और स्कूल को ड्रॉप आउट ना हो, ड्रॉप आउट हो करके किसी दूसरे वर्क में वो एंगेज ना हो। Such a precise attended rate and relative economic disadvantage तो ये जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हुई, लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, कंट्री की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, इसको देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं और पेरेंट अपने स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करा दिए। तो एज एन एग्जाम्पल है इसमें, इन सीरिया ड्यूरिंग द इबोला क्राइसिस allowed young girls to allocate time away from the man, preventing out of the wedlock pregnancies and enabling them to re-enrollment in the school post crisis। सीरिया की एक स्टोरी है जब उसमें इस तरह की क्राइसिस हुई थी जिसमें बहुत सारे उसमें गर्ल स्टूडेंट को मना कर दिया गया था कि वो स्कूलिंग नहीं करेंगे। द प्रोग्राम ऑफ द सेफ स्पेस एंड स्किल ट्रेनिंग ऑलमोस्ट एंटायर रिवर्स द लार्ज other experience from Syria suggests that the flexible approach may be needed to re-enroll students who have new demand on their time. There is also a large body of evaluating evidence from non-emergency settings that provide insight into how to use information campaign and community participation to increase enrollment. Much of this evidence remain relevant to the reopening and recovery after COVID-19. तो सीरिया में जो प्रॉब्लम हुई थी इबोला, वो एक बीमारी है, वो भी एक पैंडेमिक थी, और उसी को देखते हुए उसी के आधार पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने पॉलिसी बनाई और स्कूल को रीओपन किया गया। Evidence on encouraging enrollment after the crisis. Community participation is at the heart of the disaster recovery and the support re-enrollment efforts. Financing parents, teachers, associations working with the local political and school management group and creating opportunities for community monitoring. Large scale direct communication with student and parents can also increase enrollment and attendance. तो बच्चों के री एनरोलमेंट करने के लिए भारी संख्या में कम्युनिकेशन किए गए पेरेंट्स से और इसमें स्टूडेंट का री एनरोलमेंट भी हुआ। प्रूवन इंटरवेंशन इज दिस कैटेगरी इंक्लूड्स सेंडिंग रिमाइंडर्स एंड नजेस वाया SMS, इंफॉर्मेशन एंड कैंपेन टू कम्युनिकेट द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन। तो ये चीज़ जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो हुई, जिसमें रिमाइंडर भेजा गया, SMS किए गए, इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन को कैंपेनिंग के माध्यम से पेरेंट के पास पहुंचाए गए, और जिसके वजह से री एनरोलमेंट बच्चों का फिर से शुरू हुआ। टू कम्युनिकेट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, और उन्हें ये बात बताई गई कि एजुकेशन के महत्व क्या है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो आगे क्या समस्याएं हो सकती हैं। एंड वर्किंग विद द रोल मॉडल टू शेयर एजुकेशन सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस टू इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी सच एज डबल शिफ्टिंग।
स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी एडवाइस दिए गए थे कि बच्चों को स्कूल में आपको डबल शिफ्ट में टीचिंग करानी है, 50% अटेंडेंस के साथ में करानी है, तो 50% डबल शिफ्ट में ही पॉसिबल है। आर द कॉमन इन क्राइसिस अफेक्टेड कॉन्टेस्ट बट देयर इम्पैक्ट्स आर लार्जली अननोन। ये जो भी क्राइसिस के वजह से हुआ, इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे ये तो अनजान था। डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी देयर इज़ नो रिगोरस एविडेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द डबल शिफ्टिंग इन द क्राइसिस सेटिंग। ये हमें जानकारी नहीं थी कि अगर डबल सीटिंग में स्कूल्स चलेगी तो कितना सक्सेस होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। और इस चीज़ को देखते हुए, इस अज्ञानता को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई और बहुत सारे स्कूलों में 50% अटेंडेंस के साथ डबल शिफ्ट में क्लासेस भी शुरू किए गए। दिस शोज दैट इट कैन इंक्रीज एक्सेस एंड एनरोलमेंट एंड दैट इट में इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉर्मली आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स टू एनरोल वंस द स्कूल रीओपन। ये सब होने के बावजूद पॉलिसी मेकर्स के जो व्यू था कि जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर चुके हैं, जो ऑनलाइन में नहीं हैं या स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हें पहले री एनरोल किया जाए, दोबारा उन्हें स्कूल में बुलाया जाए। ओवर द लार्ज टर्म हाउएवर ए रिडक्शन इन द कॉन्टैक्ट आवर में रिड्यूस लर्निंग particularly in the poorest school। जो गरीब क्षेत्र के स्कूल हैं या छोटे स्कूल हैं, उन स्कूलों में और भी लगभग सभी स्कूलों में टाइमिंग जो है उसको कम किया गया ताकि बच्चों के कांटेक्ट जो है कम से कम हो सके। अगर लंबे समय तक बच्चे स्कूल में रहते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट होने का चांसेस उसमें ज़्यादा रहती है। अब इसके ऑल्टरनेट में हुआ क्या, हाउ एवर द रिडक्शन इन द कॉन्टैक्ट आवर में रिड्यूस लर्निंग। बच्चे अगर कम समय स्कूल में रहते हैं तो उनकी लर्निंग भी कम हो जाएगी, पर्टिकुलरली इन द पुअरेस्ट स्कूल। अदर प्रॉब्लम अदर promising changes to the school environment include improving school was WASH। Here is a word WASH। ये जो वाश है, वाश का मीन ही होता है साफ करना, सफाई, बट इसका W स्टैंड फॉर वाटर, A स्टैंड फॉर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। आई मीन वाटर, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, ये स्कूलों को मेंटेन करना है। जब स्कूलों की सफाई हो तो इसमें क्या होनी चाहिए, वाटर अलग, सैनिटाइजेशन करना ही है उसको, एंड हाइजीन, वहाँ पर जो है हर एक की जांच। और आज भी स्कूलों में हो रही है, अभी भी हो रही है, सैनिटाइजेशन हो ही रहा है, थर्मल स्कैनिंग हो ही रही है, तो हाइजीन की इसकी जानकारी मिलती है। which has been shown to increase enrollment and attendance particularly among girls through this is not away in the case। अब इस चीज़ को देखते हुए इसमें स्टूडेंट तो बढ़े ही, साथ में जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो उनकी भी बढ़ोतरी हुई। न्यूली vulnerable students who are not able to return to regular school enrollment will still need opportunity to enroll and learn। जो स्टूडेंट स्कूल में रेगुलर नहीं हो रहे थे वो भी अब स्थिति को बेहतर देखते हुए स्कूलों में आना चाहते हैं, और पेरेंट जो हैं वो भी अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे हमारे स्कूलों में अब जाएं, बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। Some children may be
at greater risk and danger of the infection during the current pandemic. बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस महामारी के दौरान उन्हें भी इन्फेक्शन हुई, जिसके वजह से काफ़ी उनकी फैमिली और स्टूडेंट जो हो डरे हुए महसूस कर रहे हैं. Very little evidence yet exists on the effect of COVID-19 on children with comorbidities, some of pre-existing respiration illness and immune dysfunction. लेकिन बच्चों में जो है इस पैंडेमिक का असर बहुत कम देखा गया है. बहुत कम ही बच्चे कोविड से अफेक्टेड हुए हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे जो है बच्चे एनरोल कराना शुरू किए हैं, उनकी स्कूलिंग शुरू हुई है. हाउसहोल्ड्स विथ अफेक्ट चिल्ड्रेन और इन विच अदर फैमिलीज members are at significant risk may choose to avoid school even if they reopen. Enrollment plans should find locally relevant means of providing opportunities to learn for these newly vulnerable students. The next is overcoming increased cost of the school attendance. स्कूल में जो बच्चों की अटेंडेंस की कमी हुई है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए. Rigorous evidence suggested that financial support to the vulnerable household is critical to getting children back to the school. एक एविडेंस में प्रमाण में ये भी देखा गया कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है नहीं होने के वजह से बच्चे एनरोल नहीं हो पा रहे हैं. और जहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट की दिक्कत नहीं है पर्टिकुलर करके वही पेरेंट जो है बच्चों को एनरोल करा रहे हैं. रिकवरी एफर्ट्स मस्ट हेल्प फैमिलीज overcome new financial constraint and the opportunity cost of the schooling strategy could include school related fee reduction, subsidies and household cash transfer. According to the data from Liberia's high frequency phone survey, लिबेरियाज में जो हाई फ्रीक्वेंसी फ़ोन के ऊपर सर्वे हुई थी उसका भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ा हुआ था. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से फ़ोन के यूज से बच्चों को दूर रखा गया था, बिल्कुल यहाँ भी पैंडेमिक के टाइम में भी बच्चों को सेफ़ स्कूलों में प्रोवाइड कराने की प्रॉमिस की गई और सेफ्टी जोन बनाया गया. Income shocks to the poor household may introduce parents to take their children out of school. इनकम शॉक, परिवार की जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी तो ये भी एक सबसे बड़ा वजह है बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट करने की. एंड सेंड देम टू वर्क, और उन्हें काम में भेजना, स्कूल से निकाल करके काम में भेजना. फैमिली की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के वजह से ये सब हुआ. When schools were closed during Syria, many of the approximately 3 million children living in communities affected by the disease carried out petty traders or other form of work to support the survival of the households. Once withdrawn from school due to parental unemployment or diseases, many children will not subsequently enroll. While measuring should be taken to reduce the need of the children to work, it is possible that some students will need to continue work while they attend school, and this will require flexible situations. तो सीरिया के ये जो सिचुएशन थी वहाँ जो इबोला डिजीज़ जो फैला
तो बहुत सारे पेरेंट की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से बच्चे वर्क पे जाने लगे, बट वहाँ के पॉलिसी मेकर्स ने बच्चों को वर्क में जाने की क्या ज़रूरत है उसके ज़रूरत को कम किया गया। गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ उनको हेल्प की, देखिए हम इस चीज़ की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों को वर्क पे मत भेजिए। तो धीरे धीरे वहाँ भी जो स्कूलिंग थी वो शुरू हुई। Evidence regarding providing support to household in overcoming the cost of schooling। उसके बाद स्कूलों में जो बढ़ती हुई फ़ी, ये भी एक सबसे बड़ा वजह है। Financial support include cash transfer can reduce the financial burden and opportunities cost face the family sending their children back to school। नेक्स्ट है स्कूल मील कैन एनकरेज एनरोलमेंट। उसके बाद स्कूल में जो मील का टाइम था, मध्याह्न भोजन का जो प्रोग्राम, इसको बढ़ावा दिया गया बच्चों को एनरोलमेंट करने के लिए। एंड अटेंडेंस, मेनी गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग सम इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैव अरेंज्ड द कंटिन्यू प्रोवाइडिंग स्कूल मील्स व्हाइल द स्कूल्स आर क्लोज्ड। जब स्कूल बंद थे उस समय भी बच्चों को मिड डे फूड प्रोवाइड किया गया ताकि बच्चे कंटिन्यूएशन में रहें, बच्चों की उपस्थिति बनी रहे। द शॉक एसोसिएटेड विद द क्राइसिस could increase the number of those in need of such resources, offering school meal and basic necessary kits could incentives and make enrollment possible for some, particularly the most vulnerable। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि बच्चे किस तरह से स्कूल में एनरोल रहें, उनकी अटेंडेंस बनी रहे, उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी गई। एक तो मध्याह्न भोजन दिया गया, दूसरे में बच्चों को यहाँ भी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म के लिए और स्टडी मटेरियल के जो भी पैसे देती हैं, तो इसके वजह से भी बच्चे एनरोल्ड रहते हैं और वर्क पे नहीं जाते हैं, स्कूलिंग में रहते हैं वो। फ्री वेवर्स में सपोर्ट एनरोलमेंट। सच वेवर्स were used in post-Ebola Sierra Leone. There is no rigorous evidence on how they influence enrollment, but extensive literature support the removal of the free barriers as a means in increasing enrollment and retention, with some studies shows larger enrollment benefits among students considering to be at risk of withdrawing। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी जो है बहुत सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए, दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कोविड-19 में भी उसको अप्लाई किया गया कि बच्चे किस तरह से एनरोलमेंट में रहें, उनकी अटेंडेंस बनी रहे। मेकिंग स्कूल एनवायरनमेंट सेफ। स्कूल के एनवायरनमेंट को हम कैसे सेफ रख सकते हैं? मेंटेनिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी of the people and enrollments will be more important than ever before in the aftermath of the COVID-19 school closure। तो स्कूल जब ये बंद हुए, स्कूल खुलने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज थी कि स्कूल को किस तरह से सेफ किया जाए, स्कूल के एनवायरनमेंट किस तरह से सेफ रहे, इसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई। To make school environment safe, additional health and hygiene measures should be implemented and the school-based psychological and nutritional support should be extended to the student to strengthen their overall health and well-being in the
वर्क ऑफ द पैंडमिक, यानी कि पैंडमिक के जाने के बाद बच्चे जो हैं स्कूल आ रहे हैं, तो बच्चों में एक तो सेफ रहें प्लस उनकी जो भी हेल्थ है उसमें डेवलप हो। पॉलिसी मेकर विल वांट टू एक्सेस एविडेंस टू सपोर्ट देयर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड टू ड्रॉ ऑन रेलिवेंट experience from elsewhere. This brief summarizes the available rigorous evidence related to making school environment safe and identify 4 recommended action for the policymaker based on the bodies of evidence. Health and safety measures. तो बच्चों के स्कूलिंग के लिए सबसे पहले जरूरी थी बच्चों का हेल्थ और उनकी सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाया जाए कि बच्चे जो हैं स्कूलों में सुरक्षित रहें। प्रायोरिटाइज फॉर एजुकेशन फोकस्ड efforts after the coronavirus pandemic should include ensuring that school infrastructure and facilities are safe, that rooms are clean and disease free, and that staffs are reopened to prevent the spread of disease in the prevent of the future outwork. Evidence on the impact of improving school-based health and safety measures remain thin. It should be strengthened as schools around the world reopen. Existing evidence point to the importance of making sure that schools are equipped with adequate health and hygiene infrastructure and monitoring capabilities, that students and the staff practice regular hand wash, that school have access to sufficient hand sanitizers, and that students and staff are continuously screened for temperature and symptom. तो स्कूल एनवायरनमेंट में हम सभी लोग चूँकि स्कूल से जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग देखे भी हैं, जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। उस पॉलिसी में ये जो पॉइंट है मेकिंग स्कूल एनवायरनमेंट सेफ, जिसमें सैनिटाइजेशन, थर्मल चेक कंपलसरी है। Evidence on good alcohol health and safety after a crisis shows that distribution of alcohol-based hand sanitizer is likely to offer an effective, scalable solution, hand hygiene for the prevention of COVID-19 transmission, especially where running water is limited. रनिंग वाटर, जहाँ पानी की कमी है वहाँ सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश के बहुत ज़रूरी है, थर्मल स्क्रीनिंग भी वहाँ ज़रूरी है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ए सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ एविडेंस लार्जली फ्रॉम wealthy countries shows that young children in particularly are more likely to use water less hand sanitizer consistently when available than they are to use soap and water. और जहाँ सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है वहाँ सोप एंड वाटर जरूरी है। That supply hand sanitizer for use of classroom and day care centers have recorded the substantial reduction in diarrhea and respiratory illness. Alcohol-based hand sanitizer is highly effective against the COVID-19 and recommended for use by the WHO. Compared with the major wash, I mean water, sanitization and hygiene infrastructure upgraded, it is easy to distribute and deploy. WHO ने रेकमेंड किया था ये कि जहाँ रनिंग वाटर की कमी है
वहाँ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल ज़रूरी है और उसी के रिकमेंडेशन पर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र की सप्लाई हुई। Access to the hygiene supply and hand washing promotion can help prevent the transmission of the communication infectious agent. School-based temperature screening has been part of the containment and previous outbreak, but its effectiveness against COVID-19 remain uncertain. इतना सब होने के बावजूद भी कोविड-19 पे ये कितना असरदार होगा, ये फैक्ट अनिश्चित था पॉलिसी मेकर्स के अनुसार। नेक्स्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलबींग्स। क्राइसिस एंड प्रोलॉन्ग्ड स्कूल एंड क्लोजर कैन negatively impact and the well-being of the children and adolescent. Impacts that the well-being children and adolescents, conflict and environment disasters, including the potential to increase children enlargement and endangers form of the work. Evidence from Ebola. Psychosocial and emotional support are often needed to school following crisis. जो साइकोसोशियल एंड इमोशनल सपोर्ट बच्चों को जो है मानसिक सपोर्ट स्कूलिंग के लिए बिल्कुल ज़रूरी था। बच्चों को अगर मानसिक सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बच्चे स्कूलिंग के लिए तैयार नहीं होंगे। इट शोज दैट चिल्ड्रंस साइकोसोशियल वेलबींग्स कैन बी नेगेटिवली इम्पैक्ट बाय द शॉक। ए रैपिड systematic review of the impact of the social isolation suggests that children are likely to experience high rate of depression and anxiety during social isolation and for several years after its end. रिसर्च में एक चीज़ और पाया गया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके मस्तिष्क में नेगेटिव बहुत जल्दी उत्पन्न होती है और इस नेगेटिव के उत्पन्न होने का एक और भी सबसे बड़ा वजह है अकेलापन। बच्चों में जो अकेलापन है, अकेलेपन में बच्चे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और वो दबाव में आ जाते हैं। तो इस अकेलापन को दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि बच्चों को री-एनरोल किया जाए और स्कूल को सेफ जोन बना करके उन्हें स्कूलिंग के लिए तैयार किया जाए। रिकवरी लर्निंग लॉस। बच्चों में जो बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसको किस उपाय से रिकवर किया जाए। टू एड्रेस लर्निंग लॉस, पॉलिसी मेकर शुड कंसिडर टारगेटेड प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिकवरी एंड यूज लो कॉस्ट कोचिंग एंड कम्युनिकेशन मेथड्स टू सपोर्ट टीचर एंड एंगेज पेरेंट। पॉलिसी मेकर ने बच्चों के लर्निंग लॉस को मेकअप करने के लिए लो कॉस्ट वाली कोचिंग्स एंड कम्युनिकेशन मेथड्स को रिकमेंड किए, जिससे टीचर और पेरेंट दोनों एंगेज रहें। पॉलिसी मेकर विल वांट टू एक्सेस एविडेंस टू सपोर्ट देयर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड टू ड्रॉ on relevant experience from elsewhere. This brief summarization the available rigorous evidence related to recovering learning loss and identify 3 recommended action
for the policymaker based on the bodies of the evidence. Accelerated learning. Decade of search shows that school closures are associated with learning loss with more pronounced effect among low income families. काफ़ी दिनों तक स्कूल बंद होने पर एक चीज़ देखा गया कि जो लो इनकम ग्रुप फैमिली है वहीं पर उसी फैमिली में बच्चों का जो लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है. Accelerating learning programs are common intervention of support catch-up efforts. They help students cover core academic materials in less time. Evidence suggests that the accelerated learning intervention focused on the basis can have positive impact on learning in developing countries, particularly among those further behind. The policymaker takes steps to reverse learning loss after the current crisis. They should keep in sight the social and emotional need of the children. Social isolation and loneliness are the harmful to the mental health of the children. दशकों तक यानी कि काफ़ी दिनों तक रिसर्च के बाद जो बच्चों के ऊपर रिसर्च हुई उनमें एक ही प्रमाण सामने आया कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है उनका मेंटल हेल्थ. और मेंटल हेल्थ तब हार्मफुल होता है बच्चे जब अकेले में रहते हैं या जब अकेलापन महसूस करते हैं. ये उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है जिससे वो मानसिक रूप से विकृत हो सकते हैं. In addition to accelerate learning, researchers are urging government to allow time for play and socialization as the children return to school. ये बच्चों का जो लर्निंग प्रोग्राम है इसमें तेजी लाने का एक ही वजह है कि बच्चों की मानसिक स्थिति बनी रहे, मानसिक संतुलन बनी रहे, उन्हें किसी तरह का मानसिक विकार न हो अकेलापन के वजह से. द एविडेंस ऑन रिकवरिंग लर्निंग लॉस आफ्टर ए क्राइसिस shows that simplifying the planned curriculum to accelerate learning can support recovery when learning loss is likely to have occurred for entire while got the rigorous evolution in Syria to cover 2 academic years in one following the Ebola pandemic suggests that accelerated learning can help get students back on the track. तो जो सीरिया में जो भी पैंडेमिक हुई थी इबोला की, वहाँ के स्टडी से ये पता चला कि जो अपना एक्सेलरेटेड लर्निंग है, बच्चों को स्पीड लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, जो एक्सेलरेटेड लर्निंग का ही एक प्रोग्राम है स्मार्ट क्लासेस, जिसमें बच्चों की लर्निंग लॉस काफ़ी तेज़ी से मेकअप होती है. वेरिएशन ऑफ दिस अप्रोच have shown positive result in other countries as well. The idea is not to do more with less time, but rather facilities equalities catch up with the simplified curriculum of select core component to cover thoroughly in the time available. यानी कि इससे जो स्पीड लर्निंग प्रोग्राम है बच्चों में काफ़ी तेज़ी से ये प्रचलित हुई, और जो अपनी स्मार्ट क्लासेस है इसमें बच्चों की लर्निंग लॉस काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ, और ये सारे कंट्री में सक्सेसफुल है. टारगेटेड इंसेंटिव प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द बेसिक लिटरेसी एंड
Numeracy can support accelerated learning, particularly for those furthest behind. Following prolonged closure, student will return to school and varying level of the learning loss, possibly due to the previous skill level. डिफरेंशियल एक्सेस टू डिस्टेंस लर्निंग, तो बच्चों में लर्निंग लॉस की भी कमी आई है जो डिस्टेंस लर्निंग की वजह से जो हम ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुई, ये भी एक डिस्टेंस लर्निंग का ही प्रोग्राम है और इससे बच्चों में लर्निंग लॉस की भी कमी आई है। और वेरिंग होम सपोर्ट ड्यूरिंग द क्लोजर, या फिर जिन फैमिली में होम सपोर्ट हैं, जहां पेरेंट जो हैं एजुकेटेड हैं, अपने बच्चों को गाइड कर पा रहे हैं, वहां भी लर्निंग लॉस बहुत कम है। A robust body of evidence indicate that instruction focused on foundational literacy and numeracy skill targeted the student individual level even for 1 or 2 hours per day can substantially improve learning. This kind of targeting can be based on a rapid performance substantial as student return. Teacher-led learning camp and remedial tutoring program can support learning accelerated, यानी कि टीचर्स जो हैं वो भी कई तरह के कोचिंग कैंपस की प्रोग्राम रखे जिसके वजह से लर्निंग लॉस में कमी हुई। Evidence suggests that learning campus prior to and between school term can support student learning. Such campus provide focus opportunities to accelerate the mystery of the basic skill. Carefully planned program using research-based instruction can be highly effective. If students constantly attend, studies find positive impact of high quality remedial tutoring for marginalizing students who have missed prolonged priorities of the school due to conflict or displacement. Where connectivity allows remote and technology based on learning strategy can also support remedies for accelerated learning, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग जो है और टेक्निकल लर्निंग होती है। ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी चल रही है सब टेक्निकल लर्निंग के अंडर में आते हैं और इसके वजह से लर्निंग जो है काफ़ी एक्सेलरेट हुई, काफ़ी तेज़ी से लर्निंग हुई और बच्चों का जो लर्निंग लॉस है उसमें कमी आई। Many countries around the world have made impressive progress in developing distance learning platform during school closure. When school reopen, this platform could complement regular instructions to support learning recovery. For example, evidence support that high quality adaptive technology added after the school instruction program can accelerate learning growth, particularly for those furthest behind. जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ से कोचिंग या और भी स्कूलिंग की पॉसिबिलिटीज़ कम है, बच्चों को आने जाने में परेशानी है, वहाँ ये जो डिस्टेंस एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है ये काफ़ी वहाँ कारगर साबित हुई। However, while such remedial strategies can be useful, they are not all the same. Simply providing the hardware such as computers or tablets without carefully designed software is likely to improve learning distances. और जो बच्चों में और दूर दराज क्षेत्रों में
कंप्यूटर्स और टैबलेट की सप्लाई की गई, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूलों में दिया ताकि ऑफ टाइम में भी जब स्कूल बंद थी और स्कूल जब खुले उस समय बच्चों के लर्निंग लॉस को रिकवर किया जा सके। सपोर्टिंग टीचर्स एंड पेरेंट, एविडेंस फ्रॉम पास्ट क्राइसिस सजेस्ट दैट टीचर्स नीड न्यू स्किल एंड कैपेबिलिटी एज दे सपोर्ट स्टूडेंट्स ट्रांजिशन बैक टू स्कूल। इसमें जो है सपोर्टिंग टीचर्स एंड पेरेंट में टीचर भी चाहते हैं कि उन्हें नई स्किल मिले और नई टेक्नोलॉजी उन्हें प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर हो सके और बच्चों का जो लर्निंग लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके। एनक्लोजर सेफ स्कूल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड रेमेडीज लर्निंग एक्टिविटीज नॉट ओनली does providing support to teachers after the potential of improved learning. Such efforts have also been linked to improve the well-being of the students. और ये जितने भी सपोर्ट हैं, जितने भी पॉलिसीज बने, वो सारे स्टूडेंट्स के वेलबींग के लिए, उनके कल्याण के लिए ही बनाए गए। While there are many promising practices to strengthen teacher development over a long term, we offer evidence on activities to support teacher and classroom in immediate term after school reopen. The pandemic has also forced the increased involvement of the parent around the world in their children education while schools are out of session. These provide a unique opportunity to encourage parents to remain engaged over a long term even as school reopen. The evidence of support teacher and parent after the crisis that regular coaching can support teacher as they adopt a new demand. As school reopen, teacher will face the daunting task of the supporting student in covering the lost background. They will be operating in the modified environment and will likely be deliberating an irregular syllabus. All of these require new skills and capacity. Formal retraining will take time and substantial resources. टीचर्स जो हैं स्कूल रीओपन होने के बाद बच्चों के बिगड़ती हुई सिलेबस यानी कि उनकी जो लॉस जो हुई लर्निंग में, इस लॉस को देखते हुए कोचिंग पे बढ़ावा देने का भी उन्होंने डिमांड किया था और इससे भी बच्चों के काफ़ी विकास हुआ, बच्चों में जो लर्निंग लॉस हुई उसमें कमी आई। Formal retraining will take time and substantial resources. Evidence suggests that on-the-job and virtual teacher coaching can help strengthen teaching practices quickly and effectively. इसका एक और वजह था कि जब स्कूल बंद हो गए तो टीचर्स भी फ्री हो गए और टीचर जब फ्री हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, टीचिंग प्रैक्टिस भी लॉस होने लगती है। तो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए कोचिंग की डिमांड की गई। तो इसके वजह से दोनों की डेवलपमेंट हुई, बच्चों में लर्निंग लॉस हुआ और टीचर्स की प्रैक्टिस जो है वो बनी रही। Leveraging the entire education workforce, not only the teachers may support learning. Evidence suggests that engaging other education professional volunteer to peer support as tutor, mentor and
additional help for teachers can strengthen learning outcome as well as support vulnerable students including girls in returning to and stay in school। तो इस तरह के जो सपोर्ट जब शुरू हुए तो इससे स्टूडेंट्स तो आए ही, बॉयज़ स्टूडेंट में बढ़ोतरी हुई, साथ में गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो भी हॉस्टल्स वगैरह में रहने के लिए एग्री हुए और पेरेंट भी एग्री हुए। देयर आर सेवरल लो टेक एंड लो कॉस्ट ऑप्शन टू मेंटेन हाई रेट ऑफ पेरेंटल एंगेजमेंट इन द स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रेन। बच्चों को स्कूलिंग कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारे स्कूलों में लो कॉस्ट वाले स्कूलिंग की व्यवस्था की गई, लो कॉस्ट वाले बोर्डिंग की व्यवस्था की गई, हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई। डायरेक्ट इंटरवेंशन विद द पेरेंट्स वाया SMS and other channels have been shown to increase the sustain their involvement at home and at school, resulting in large learning gain for their children। पेरेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, पेरेंट को भी मिलाया गया, पेरेंट को SMS के माध्यम से और भी दूसरे मीडिया के माध्यम से उन्हें ये समझाने की कोशिश की गई कि इसमें स्कूल और टीचर्स के अलावा आपकी सपोर्ट, आपका इसमें हेल्प बिल्कुल ज़रूरी है। इन द लार्ज लर्निंग गेन फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, बच्चों के सुरक्षित लॉस जो है उसको मेंटेन करने के लिए, जो लर्निंग लॉस है उसको मेंटेन करने के लिए पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। और ये सारे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर और पेरेंट, स्कूल्स के सपोर्ट से फिर जो दोबारा ये पैंडमिक के बाद सपोर्टिंग शुरू हुई, स्कूल रीओपन हुए, इसमें बच्चों के लर्निंग लॉस जो है उसमें कमी आई। और इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक्स हैं, एड्रेसिंग चैलेंजेस इन पोस्ट कोविड स्कूलिंग, तो ये आज के जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और एक सबसे बड़ी चीज़ हमें ये पता चली कि जो भी पॉलिसीज़ बनाए गए कोविड-19 के बाद स्कूल जब रीओपन हुए, ये जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस क्राइसिस को देखते हुए पॉलिसीज़ को बनाए गए और उसी के आधार पर स्कूल को रीओपन किए गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी चैलेंजेस डेली जो हैं स्कूल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो चैलेंजेस कहीं पर भी हो उसको फेस करना ही है स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए। स्टूडेंट जो हैं सुरक्षित रहें, स्टूडेंट के लर्निंग लॉस को कम किया जा सके, स्टूडेंट्स की रेगुलरिटी रहे, उनकी अटेंडेंस बनी रहे, इस चीज़ को मेंटेन के चैलेंजेस तो हैं, बट उस चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए भी गवर्नमेंट के साथ स्कूल, टीचर, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिली है। इसी के साथ आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, ट्रेनिंग ली, काफ़ी जानकारियाँ हासिल की। इसके लिए मैं सारे कॉलीग्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू के साथ आज मैं क्लोज करना चाहता हूँ। ओके।